A good day to all of you. Today, I'll be taking the second part of two stories about flying, the second part of Standard 10, lesson number 3, The Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. Frederick Forsyth was born on 25th August 1938 in Ashford, Kent, England. He was educated at Tonbridge School and later joined the University of Granada in Spain. He joined the RAF and became a jet fighter pilot. He became a journalist and joined the BBC in 1965, where he served as an assistant diplomatic correspondent. Now, what do we see here in the story? We find that Frederick Forsyth describes a unique but mysterious experience during his flight from Paris to London. During the flight, he was lost amid mountains of dark clouds. We find that something mysterious happens when he is lost over there. Now, there are some questions. Does he arrive safe? Who is with him? Now, these questions are still surrounded in mystery. Let's go on to the chapter to find out what actually happened to him. What happened to the other pilot who was with him in another aeroplane, which was the black aeroplane? There was no trace of where he had gone. So I'll read out the story and let's find out what happens in the story. Now, getting on to the story, the black aeroplane. The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch. 1:30 in the morning. I should call Paris Control soon, I thought. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS 088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. So what happened here now? The author, he was in his aeroplane. He had an old Dakota aeroplane. उसमें वो बैठे हुए थे और उन्होंने क्या देखा, जो मून था वो स्काई में ईस्ट के साइड पर मून था और एकदम क्लियर स्काई थी. क्लियर स्काई, इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट. सारे स्टार्स वहाँ शाइन हो रहे थे. वहाँ एक भी क्लाउड नहीं था. दैट मीन्स इट वॉज वेरी क्लियर, दिस क्लाउडलेस स्काई यू कैन से. और वो बहुत खुश था कि वो अपने घर वापस आ रहा था. एंड वो अकेला वहाँ उस अपने एरोप्लेन में वो उड़ता हुआ आ रहा था. ही वॉज फ्लाइंग ऑन हिज एरोप्लेन. ओके. और सारी पूरी जिसकी कंट्री थी साइड, क्योंकि रात का समय था, ऑल वे स्लीपिंग एंड इट वाज लेट नाइट एक्चुअली. तो उसने अपने एरोप्लेन को फ्रांस से इंग्लैंड वापस ला रहा था और वो सोच रहा था, वो ड्रीम करता, अपने सपने देख रहा था अपने हॉलीडे के बारे में. और वो कोई हॉलीडे मनाने वाले थे वो और उसकी फैमिली. तो वो देख रहा था सपने उसके बारे में और वो खुश था कि अब वो अपनी फैमिली के संग वहाँ पर अपनी फैमिली के संग यूनाइट हो जाएगा. बहुत दिन से शायद वो अपनी फैमिली के संग नहीं था एंड नाउ ही वाज कमिंग बैक टू हिज फैमिली. और उसने देखा कि टाइम क्या है. तो उसने देखा 1:30 इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग मीन्स 1:30, रात के 12 बजे के बाद जो 1:30 है AM, वो टाइम था उसमें. नेचुरली 1:30 पर ज़्यादातर सब लोग सो गए होते हैं. द होल टाउन वाज स्लीपिंग. और सारी उसकी लाइट्स जो थी उस सिटी की, वो उसको वहाँ ऊपर से ब्यूटीफुल लाइट्स उसको दिखाई पड़ रही थी. तो उसने सोचा अब उसका टाइम ऐसा था कि उसको अभी एरोप्लेन को उसको रनवे पे उतारना था.
तो उसने पेरिस कंट्रोल जो है कंट्रोल रूम, क्योंकि उसको नेचुरली ही वाज कमिंग बैक टू इंग्लैंड, और वहाँ पर पेरिस कंट्रोल को उसने फ़ोन किया। एंड उसने देखा कि उसका अच्छा सा एक बड़ा सा एरोप्लेन था। एरोप्लेन का जो आगे का पार्ट होता है, पॉइंटेड पार्ट, उसको नोज़ कहते हैं, नोज़ ऑफ द एरोप्लेन। ओके, तो उसने नोज़ से देखा कि कितना दूर है, वॉट एवर ही सॉ समथिंग फ्रॉम देयर। ओके, फिर उसने रेडियो ऑन किया। अब एरोप्लेन में रेडियो होता है, ऑल ऑफ यू नो दैट, एंड मेनी ऑफ यू हैव ट्रैवल्ड बाय द एरोप्लेन, यू मस्ट हैव सीन दैट रेडियो ऑल्सो। ओके, इफ़ यू गो टू द पायलट्स केबिन यू कैन सी द रेडियो देयर। तो वहाँ पर उसने, और बहुत सारे मूवीज़ में भी हमने देखा हुआ है कि वो एक रेडियो होता है, वहाँ पर एक कंपास होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो डायरेक्शंस वगैरह पायलट को समझाते हैं। सो ही कॉल्ड ऑन द रेडियो। रेडियो में एक तरह से एक स्टाइल होता है बोलने का। ओके, तो उसने बोला पेरिस कंट्रोल, ऐसे उसने बोला। और उसने बोला, उसने अपने एरोप्लेन की डिस्क्रिप्शन दी वहाँ पर, डेकोटा DS-088, कैन यू हियर मी। उसको कुछ आई थिंक इंस्ट्रक्शंस चाहिए थे फ्रॉम द कंट्रोल टावर, तो इसलिए उसने बोला मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। एंड ओवर, वहाँ पर क्या एक्चुअली व्हेन यू स्पीक ऑन द रेडियो यू हैव शॉर्ट सेंटेंसेस। ओके, और सो दैट इज़ द वे हाउ दे इट इज़ अनाउंस्ड। तो उसने बोला ओवर। अब जो भी वो कंट्रोल रूम में बैठे थे उन्होंने उसकी वॉइस सुनी, और वो उनको कोई ना कोई वहाँ पर जवाब देना होता है। सो लेट्स सी व्हाट ही सेड नाउ, लेट्स कंटिन्यू। The voice from the radio answered me immediately. DS-088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS-088, over. तो तुरंत वहाँ से ऑन, जैसे ही उसने क्वेश्चन पूछा वहाँ से आंसर आ गया। और उसने एक्चुअली उसको क्वेश्चन पूछा था कि मुझे कौन सी साइड टर्न करना है, कुछ इंस्ट्रक्शंस एज आई टोल्ड यू बिफोर। तो उसने बोला यू हैव टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, एंड उसने फिर से ओवर करके अपना सेंटेंस को ख़त्म कर दिया। तो ही वॉज ऑन हिज वे टू इंग्लैंड। तो पेरिस कंट्रोल से उनके पास एक रडार होता है, उसमें से और बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है जिससे वो देख कर बता सकते हैं कौन सी साइड किधर जाना है एंड ऑल दैट। तो उस तरह से उसने उसको एक इंस्ट्रक्शन पास किया। Now, I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank, and turned the Dakota 12 degrees west towards England. I will be in time for breakfast, I thought. A good, big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. तो क्या हुआ, उसने जैसे ही उसको इंस्ट्रक्शंस मिले कि 12 डिग्री उसको टर्न करना है वेस्ट की तरफ, तो उसने क्विकली, जो ऑथर था जो एरोप्लेन के अंदर बैठा था, उसने अपना मैप चेक किया, फिर कंपास चेक किया, सारी चीज़ें जो भी वहाँ पर उनको चेक करनी होती वो चेक किए। और उसका एक फ्यूल टैंक था, जो लास्ट फ्यूल टैंक था, बाकी सारे टैंक्स में उसका फ्यूल ख़त्म हो चुका था। और उसने देखा कि हाँ इनफ फ्यूल है और मैं आराम से इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा। और उसने अपना डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ टर्न कर दिया। और वो अपने सोच रहा था जैसे ही मैं इंग्लैंड पहुंचूंगा तो मैं हमेशा आई विल बी ऑन टाइम, वो एकदम ब्रेकफास्ट के टाइम पे पहुंचेगा और नाश्ते के टाइम पे पहुंचने से। और वहाँ पर एज यू कैन सी इन द पिक्चर, इंग्लिश ब्रेकफास्ट कैसे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनको खाने के लिए, और बहुत सारे इस तरह का ब्रेकफास्ट होता है। बिग नॉर्मल इंग्लिश ब्रेकफास्ट अलग होता है और बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट अलग होता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर में देखोगे तो क्या हो रहा है वहाँ पर, अच्छा सा बहुत सारी खाने की चीज़ें इंटरेस्टिंग। उसको उस बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट के बारे में सोच के वो खुश हो रहा था कि आई विल बी एबल टू ईट अ गुड ब्रेकफास्ट। एंड वो सोच रहा था सब कुछ आराम से चल रहा है और वो फ़्लाइट बहुत ईजी थी, एंड ही वॉज हैप्पी विद जो हो रहा है। अचानक क्या हुआ नाउ, Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। फिर अचानक से क्या हुआ, अभी पेरिस से वो 150 किलोमीटर्स ऑलरेडी फ्लाई कर चुका था, और उसने क्या देखा वहाँ पर, बहुत सारे स्टॉर्म क्लाउड्स, जो आंधी तूफान जो होते हैं, ब्लैक क्लाउड्स जो होते हैं फुल ऑफ रेन एंड ऑल दैट, वो स्टॉर्म क्लाउड्स उसके सामने थे। जैसे कि देखो शिप में कोई अगर ट्रैवल कर रहा है और स्टॉर्म आ जाए तो वो लोग बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ऐसे ही एरोप्लेन में जब कोई ट्रैवल कर रहा है और कोई स्टॉर्म क्लाउड्स हो, तो वो एक बहुत ख़तरनाक बात होती है जो एरोप्लेन फ्लाई करता है वो पायलट के लिए।
उसने क्या देखा कि वो स्टॉर्म क्लाउड्स इतने बड़े थे, वो एकदम माउंटेन की तरह, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स। मीन्स ही इज़ कंपेयरिंग हियर लाइक अ मेटाफोर, ही इज़ कंपेयरिंग द ब्लैक बिग माउंटेन्स टू द स्टॉर्म क्लाउड्स। ओके, तो दे वर ऑल इन फ्रंट ऑफ हिम ओनली। अभी तक तो आराम से इजी फ्लाइट लग रहा था उसको, पर अचानक से पता नहीं कहाँ से वो स्टॉर्म क्लाउड्स उसके सामने आ गए। और उसको अब वो स्टॉर्म क्लाउड्स देखते से उसको पता, उसको सोचना था कि शायद उसको क्या वापस जाना चाहिए पेरिस, या उसको क्लाउड्स के ऊपर से या क्लाउड्स के नीचे से निकलना चाहिए प्लेन। वो सब वो सोच रहा था। पर जब उसको पता था कि उसके पास इतना फ्यूल नहीं है कि वो वापस नॉर्थ या साउथ जा सके, तो ही हैड टू गेट इन टू द स्टॉर्म क्लाउड्स। उसके पास और कोई, देयर वाज नथिंग एल्स ही कुड डू। एंड एक्चुअली क्या करना चाहिए एक पायलट को ऐसे टाइम पर, जब बहुत ज़्यादा स्टॉर्म क्लाउड्स है उसके सामने, उसको उस टाइम पर वापस अपना एरोप्लेन टर्न करके पेरिस की तरफ चले जाना चाहिए। पर अब उसके पास इतना फ्यूल ही नहीं था, तो कैसे जाता वो वापस? अब उसके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। He had to get into the storm clouds only now. So next what he says, I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. तो उसने सोचा मन में कि मुझे ज़रूर पेरिस वापस ही जाना चाहिए। बट क्या हुआ, उसने सोचा नहीं नहीं चलो, मुझे घर भी जाना है। उसको वो ब्रेकफास्ट भी खाना था, वो हंग्री भी था, और उसको घर की बहुत याद आ रही थी। तो उसने सोचा कि अब मुझे ये रिस्क लेना ही पड़ेगा, और वो सीधा अपना ब्लैक जो ओल्ड डकोटा था उसके पास, उसे सीधा उसको स्टॉर्म के अंदर ले गया। Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. तो what happened now? उसने क्या देखा क्लाउड्स के अंदर? जैसे ही वो क्लाउड्स के अंदर अपना ओल्ड डकोटा ले गया, तो वहाँ पर सब कुछ एकदम ब्लैक था। इतने सारे स्टॉर्म क्लाउड्स बड़े बड़े थे कि उस जैसे ही क्लाउड्स के अंदर ले गए, पूरा डार्कनेस से वो सराउंड हो चुका था। उसको ना बाहर कुछ दिख रहा था, कुछ भी उसको बाहर दिख नहीं रहा था। और जैसे ही वो एरोप्लेन, वो उसका ऑलरेडी एरोप्लेन क्वाइट ओल्ड था, तो जैसे ही वो अंदर गया, वो स्टॉर्म क्लाउड्स की वजह से उसका एरोप्लेन जंप होने लगा, ट्विस्ट होने लगा एयर में। और जैसे ही उसने देखा, उसने सोचा चलो कोई डायरेक्शंस के लिए कंपास देखूं। जैसे ही उसने कंपास की तरफ नज़र घुमाई, तो उसने क्या देखा वहाँ पर कि उसका कंपास उसको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने देखा कि कंपास गोल 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 राउंड राउंड घूमे ही जा रहा था, घूमे ही जा रहा था। इसका कब ऐसा कंपास राउंड राउंड घूमता है? जब एक्चुअली वो वर्क ही नहीं करता। इट वॉज डेड। डेड मीन्स ख़त्म हो चुका, अभी कंपास का काम था ही नहीं वहाँ पर, वो ठीक से काम ही नहीं कर रहा था। और उसने दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में भी कुछ कुछ बात करने की कोशिश करी, तो अचानक से उसको पता चला ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी डेड हो चुके हैं। डेड मीन्स काम नहीं कर रहे हैं। तो एट लास्ट उसने सोचा चलो मैं रेडियो की तरफ जाता हूँ, रेडियो से कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस लेता हूँ। नाउ व्हाट हैपेंड नाउ नेक्स्ट? Paris control, can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. Then, in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. I could see the pilot's face turned towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. Follow me, he was saying. Follow me. He knows that I am lost, I thought. He is trying to help me. तो अब क्या हुआ? जैसे ही उसने अपने इंस्ट्रूमेंट्स चेक किए, तो उसने देखा सारे इंस्ट्रूमेंट्स के डेड हो चुके थे। तो उसका अब लास्ट ऑप्शन था उसका रेडियो। तो उसने रेडियो में भी जल्दी से बोला, पैरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हो? पर वहाँ से भी कोई आंसर नहीं आया, क्योंकि जैसे ही हम लोग रेडियो में कोई बात करते हैं, क्विकली इमीडिएटली आंसर आ जाता है। पर इस बार उस रेडियो में कोई आंसर नहीं था। उसको पता चल गया उसका रेडियो भी डेड था। तो अब उसने सोचा मेरे पास ना रेडियो है, ना कंपास है, और मैं कहाँ हूँ वो भी मुझे नहीं मालूम पड़ रहा, मुझे बाहर कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा।
वो डर रहा था कि उस स्टॉर्म में शायद उसका एरोप्लेन क्रैश हो जाएगा और वो मर जाएगा या कुछ भी हो सकता था। फिर अचानक से क्या हुआ, उसको उसने देखा जो ब्लैक क्लाउड्स के पास उसने एक एरोप्लेन देखा, वन मोर एरोप्लेन, ओके, विच वॉज फुली ब्लैक इन कलर। ही सॉ दैट एरोप्लेन। उस एरोप्लेन में क्या था, उसकी लाइट्स, जो विंग्स होती है ना एरोप्लेन के ऊपर, उस पर बाहर की तरफ लाइट्स होती है। सो ऑल ऑफ यू कैन सी एनी एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई। मैनी ऑफ अस ऑलवेज, जब हम लोग स्काई की तरफ देखते हैं और कोई एरोप्लेन जा रहा है तो वी कैन सी द एरोप्लेन इन द नाइट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द लाइट्स देयर। सो उसने देखा वहाँ पर कोई लाइट्स नहीं थी उसकी विंग्स पर वो उसके साथ साथ ही स्टॉर्म में वो एरोप्लेन साइड बाय साइड उसके चल रहा था, फ्लाई कर रहा था। तो उसने देखा कि वो पायलट का फेस उसकी तरफ देख रहा था, वो दूसरे एरोप्लेन में जो पायलट बैठा था वो उनकी तरफ देख रहा था। तो उसको अच्छे से ऐसे हास हुआ उसको कि ओके समबडी इज़ देयर विथ मी एटलीस्ट। और फिर उस पायलट में क्या किया, उसने अपना एक हाथ उठाया और उसको एक वेविंग मोशन में उसको वेव किया और उसको एक इंस्ट्रक्शन दी ज़ोर से, फॉलो मी। मीन्स उसने कुछ बोला, एक्चुअली एरोप्लेन के अंदर क्या बोल रहे वी कैन नॉट हियर, बट उसके मुंह से उसकी लिप्स का जो मूवमेंट था उससे उसको जो ऑथर था उसको पता चल गया। वो कह रहा है फॉलो मी, ऐसे वो कह रहा है। ही कुड सी फ्रॉम द लिप्स ऑफ द अदर पर्सन हु वाज इन द अदर एरोप्लेन। और उसको लगा कि वो दूसरा एरोप्लेन वाला को पता है कि मैं यहाँ पर लॉस्ट हूँ, इसलिए वो मुझे सिर्फ हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। और नाउ ही वॉज हैप्पी नाउ कि चलो कुछ ना कुछ तो हुआ यहाँ पर। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. So what happened now? उसने अपना एरोप्लेन, जो दूसरा एरोप्लेन था ब्लैक एरोप्लेन, जिस एक्चुअली स्टोरी का जो नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, जो जिसमें एक आदमी था, वन मोर पायलट वाज देयर इन दैट एरोप्लेन। तो उसने अपना एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ टर्न किया और वो उसके सामने अपना एरोप्लेन लेके आ गया, उसके डेकोटा के सामने वो फ्लाई करने लगा। तो उसको सिर्फ फॉलो करना था, है ना। सो ही स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। तो नॉर्थ की तरफ जा रहा था, तो वो जो हमारा ऑथर है ही ऑल्सो टर्न टुवर्ड्स द नॉर्थ। और अब वो खुश था कि चलो कोई ना कोई मुझे गाइड करने तो आया। और वो चुपचाप अच्छे से बच्चे की तरह, ओबीडियंट चाइल्ड, ओके, आप लोग सब लोग बहुत सारे ओबीडियंट चाइल्ड है ना क्लासरूम में, मैंने देखा है बहुत सारे अच्छे गुड चिल्ड्रन होते हैं जो बहुत ओबीडियंट होते हैं, ओके। ऐसे ही ओबीडियंट चाइल्ड होने से बहुत फ़ायदे हैं। यू सी ऑथर को क्या होता है ओबीडियंट होने से, तो वो क्या करता है, तो वो धीरे धीरे वो दूसरा ब्लैक एरोप्लेन जो आगे जा रहा है उसके पीछे पीछे वो चल देता है, ओके। ऑल ओबीडियंट चिल्ड्रन देयर सिटिंग आउट देयर लिसनिंग टू मी, ओके। नाउ नेक्स्ट, आफ्टर हाफ एन आवर the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed थ्रू द स्टॉर्म। तो अब क्या हुआ, आधे घंटे तक तो वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन अचानक से कहीं से आ गया था, ऑथर के एरोप्लेन के आगे आगे चल रहा था और पूरे क्लाउड्स उन दोनों एरोप्लेन्स को सराउंड किए हुए थे। और पीछे पीछे चुपचाप ऑथर चल रहा था, जैसे कि मैंने पहले बोला ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, ओके। तो ऑथर ने अपने फ्यूल टैंक में देखा तो उसको लगा कि अब मेरे फ्यूल इतना ही बचा है कि 5 या 10 मिनट्स तक ही मैं और उड़ सकता हूँ, उसके बाद पता नहीं क्या होने वाला। अगर मुझे एक रनवे मिल गया और मैं अपना प्लेन को उस रनवे पे लैंड कर सका तो आई विल बी हैप्पी, ओके। और उसको थोड़ा सा डर भी लग गया कि क्या होगा मेरे साथ। और अचानक से उसने क्या देखा, जो ब्लैक एरोप्लेन उसके सामने है वो धीरे धीरे नीचे जाने लगा और उस ऑथर ने भी उसको धीरे धीरे फॉलो किया और वो स्टॉर्म के अंदर से नीचे की तरफ वो दोनों जाने लगे, ब्लैक एरोप्लेन सामने और ऑथर का एरोप्लेन उसको फॉलो करते हुए। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 long straight lines of lights in front of me. It was a runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane. But the sky was empty.
There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. तो क्या हुआ, जैसे जैसे वो ब्लैक एरोप्लेन उसके सामने नीचे उतरता गया स्टॉर्म में से, ऐसे ऐसे ऑथर ने उसको फॉलो करता गया। ओके एंड क्या होता है उसके बाद, उसने क्या देखा, अच्छा जैसे ही वो क्लाउड्स में से बाहर निकला तो उसकी खुशी के ठिकाने ना रहे, क्योंकि उसके सामने देखो पिक्चर में क्या दिख रहा है। ओके दैट्स अ रनवे। ओके एयरपोर्ट आ चुका था, एक रनवे था उसके सामने। अब वो आराम से अपनी जो एरोप्लेन है उसको लैंड कर सकता था रनवे पर। उसके पास इतना ही फ्यूल था कि 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए ही वो चला सकता था। तो वो बहुत खुश हुआ, उसका खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि रनवे था, एयरपोर्ट था, और सबसे मेन बात क्या थी, वो दोनों चीज़ देखकर वो जो ऑथर थे वो सेफ़, ही वॉज फीलिंग वेरी सेफ़ नाउ। और फिर उसने जैसे ही वो दोनों चीज़ें देखी, फिर उसने टर्न किया, उसने अब देखा तो आगे वो ब्लैक एरोप्लेन था ही नहीं। अब उसने सोचा कि चलो मैं अपने फ्रेंड को बाय या कुछ ऐसा बोलूँ या थैंक्स का एक एक्शन करूँ अपने प्लेन में से। पर जब उसने यहाँ वहाँ सब जगह देखा तो क्या देखा कि वहाँ पर कोई ब्लैक एरोप्लेन नहीं था। स्काई पूरी खाली पड़ी थी, एम्प्टी इट वाज। एंड हर जगह उसने ऐसे ऐसे अपना सर घुमाया, बट देयर वाज नथिंग देयर। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, इट चला गया। ही कुड नॉट सी इट एनी मोर, कहीं भी उसको वो ब्लैक एरोप्लेन दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। So then now what happened? I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. She looked at me very strangely and then laughed. Another aeroplane? Up there in the storm. No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. तो क्या हुआ, जो हाँ, सो व्हाट हैपन नाउ, उसने अपना प्लेन को लैंड कर दिया। एंड अब वो खुश था कि अच्छा हुआ मेरा प्लेन लैंड हो गया, जहाँ भी लैंड हुआ कोई भी एयरपोर्ट पे चलेगा। लैंड तो हुआ। एंड वो अपने ओल्ड डेकोटा में से बाहर निकले और वो कंट्रोल टावर की तरफ गए। और वहाँ पर जो कंट्रोल टावर पर एक रिसेप्शन में या जहाँ भी एक लेडी बैठी हुई थी वहाँ पर, जो सारा कुछ ना कुछ चेक करती रहती है। और वो उनसे पूछने गया कि मैं चाहता हूँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो दूसरा पायलट कहाँ गया? मुझे उसको थैंक यू बोलना था, पर मेरे थैंक यू बोलने से पहले ही पता नहीं कहाँ चला गया। कैन यू टेल मी वो कहाँ गया? तो अब वो लेडी जो वहाँ बैठी थी, उसने अपना मुंह बहुत स्ट्रेंज में अलग सा उसने सोचा ये आदमी बोल क्या रहा है, व्हाट इज़ ही सेइंग। स्ट्रेंज था उसके लिए, एक बहुत ही स्ट्रेंज बात उसको लगी ये सब, वो लेडी जो बैठी थी। और फिर वो धीरे से हंसी और उसने क्या बोला, इतने स्टॉर्म में क्या कोई और एरोप्लेन हो सकता है? सिर्फ आपका ही एरोप्लेन उधर वहाँ ऊपर था, कोई भी एरोप्लेन, देयर वाज नो एरोप्लेन फ्लाइंग टुनाइट। और जब मैंने राडार पर देखा तो मुझे सिर्फ आपका एक ही एरोप्लेन वहाँ पर दिखाई पड़ा। सो ऑन द radar there was only one aeroplane over there was no other aeroplane on the radar। और अब उसको विश्वास नहीं हुआ, ये क्या बोल रही है, अरे मेरे संग दूसरा एरोप्लेन तो था, उसी वही तो पर्सन है जो मुझे यहाँ तक लेकर आया। बट या तो उसने ठीक से देखा नहीं होगा, उसको वो लगा कि वो लेडी ने रेडार को देखा ही नहीं होगा। पर उसने बोला, जब उसने लेडी ने उसको अच्छे से, अब वहाँ जो बैठा है सबको अपना अपना काम तो ठीक से आता है, नेचुरली जब उसने बोला कि और कोई एरोप्लेन नहीं था तो नहीं होगा। ओके सो नाउ व्हाट हैपेंड, सो who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? तो अब ऑथर एकदम सरप्राइज हो गया कि ये क्या हुआ, है ना। ऐसा कौन सा पर्सन था जिसने मुझे हेल्प किया? कौन था वो आदमी जिसने मुझे हेल्प किया, जिसने मुझे यहाँ पर सेफली आने में मदद करी, जिसने, जहाँ मेरे पास कंपास नहीं था, रेडियो नहीं था, मेरे पास फ्यूल भी नहीं था। लास्ट में तो क्या, सबसे बड़ी बात तो फ्यूल भी नहीं था। कंपास और रेडियो ना हो तो चलेगा, पर फ्यूल हो तो कहीं ना कहीं तो उड़ ही सकते हैं, है ना। दिन, जब तक रात ख़त्म हो जाए, दिन हो जाए, जब तक तो हम लोग उड़ उड़ के कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं क्या करना है। बट अब तो फ्यूल भी नहीं था उसके टैंक्स में। ओके सो द नेचुरली द पायलट, द ऑथर जो पायलट था, उसको बहुत ही स्ट्रेंज और अजीब सा लगा
उसने सोचा अपने मन में, कौन था वो पायलट जो ब्लैक एरोप्लेन में था? कौन था जो वहाँ पर फ्लाई कर रहा था, वो भी स्टॉर्म्स में बिना लाइट्स के? ओके, और जिसने मुझे इतनी हेल्प करी थी? ऐसा कौन आदमी था जिसने ऐसे हेल्प करा मुझे? तो इट वाज सो, क्या कह सकते हैं, इट वाज वेरी, द अननोन पायलट जो था, उसको लगा कि वो अननोन पायलट जो है, वो मिस्टीरियस पायलट जो था, वो कहाँ डिसअपियर हो गया? ओके, क्या हो गया उसके साथ? और ये सब चीज़ें उसके ख्याल में आ रही थी। तो द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन रिमेन्ड एन अनसॉल्व मिस्ट्री फॉर द नरेटर। नरेटर के लिए वो कभी भी सॉल्व नहीं कर सका वो मिस्ट्री कि कौन था वो जो ब्लैक एरोप्लेन में बैठा था, जिसने उसको हेल्प किया, बट he had gone away without a trace, he could not be seen। और उस पायलट ने क्या किया था? अपना काम किया था। द पायलट हैड डन हिज वर्क एंड डिसअपियर्ड इन द स्काई। उसने अपना उसकी लाइफ सेव कर दी और वो खुद पता नहीं कहाँ चला गया। अब वो नरेटर जो ऑथर है, अब उसको लगा कि थैंक गॉड कि वो ब्लैक एरोप्लेन आया मेरी लाइफ में और उसने उस पायलट ने मेरी लाइफ को सेव कर दी। नहीं तो आई डोंट नो वेयर आई वुड हैव बीन, कहाँ गया होता मैं तो, और क्या होता मेरा, मैं जिंदा रहता या नहीं रहता, पता नहीं क्या होता मेरा। सो ही वॉज सो थैंकफुल टू द मिस्टीरियस पायलट इन द ब्लैक एरोप्लेन। सो दिस हाउ द स्टोरी एंड्स। अभी तक वो स्टोरी, द ऑथर फ्रेडरिक फॉसेट, उसने स्टोरी को ऐसे एंड किया है कि किसी को वो अनसॉल्व मिस्ट्री की तरह ही रह गया। सिर्फ पायलट को ही पता चला कि यहाँ पर एक एरोप्लेन था। इवन जो रेडार था उस पर भी वो एरोप्लेन दिखाई नहीं पड़ा। ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू एंजॉय द स्टोरी एंड थैंक यू अगेन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू।